Instagram Live, a new session. Can you see me? Can you hear me? Just waiting for people to join. And hi Manish, finally you got how to use it. Wonderful. Hi. Hello everyone. Hello. Yes, so looks like we have game. Hello Sujata. Hi. Thank you guys. Thank you for your immense support and believe me, you guys are doing fantastic. And Sharvari joins us in right about 3, 2, 1. Hi. Oh, hi. Hi, how are you? Good. Wonderful to see you. क्या hairstyle है? Hairstyle करना पड़ता है. Okay. Good. So good to see you. Can you hear me? Yes, I can hear you. Quick check with the audience. Please say yes if Yeah. you can hear us both. क्या हम दोनों की आवाज सुनाई दे रही है? क्या हमारा वीडियो क्लियर है? So let us have this check done first before we start. Okay, so looks like we're all good and clear. Yes, you can. That's wonderful. So Sharvari लोग का join होता है तोपर्यंत अपन Yeah. Yes. Expecting a big मला crowd. ऍक्च्युली तुझा आवाज थोडासा मध्ये मध्ये येत नाहीये. Oh, okay. जातोय. हा. ठीक है. So hopefully it should get better. Yeah. आता मी एकदम We can Wi-Fi start. माझ्या राउटरच्या एकदम खूप जवळ बसलोय. So I think that should help. Yeah. Okay, good evening. So yes, everything is okay and clear. Thank you, Maulik. Thank you. Good evening, everyone. Thank you. Welcome to session number 7. Wow, feels good that this is my session number 7, and believe me, it is your love and your confidence so far in me that has kept me going. A big thank you to all the people who joined earlier as guest speaker. But yes, by today's special, today we have Sharvari with us, a fantastic host, a fantastic radio jockey, a fantastic background in artist, music, singing, content writing. She sings Oh my well. God. She's to been with radio for the last 8 years. Big FM 92.7. आप सबने उसको सुना होगा, लेकिन आज देख रहे हैं. So it's wonderful. So welcome Sharvari, and thank you so much for joining my Insta Live series. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एक्चुअली एंड बिग एफएम में मेरा करियर 2 साल से है. उससे पहले आई वाज वर्किंग विथ रेडियो नगर 90.4 एफएम. सो या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन एंड आपसे भी बहुत कुछ सीखना है, आपसे भी बहुत कुछ पूछना है. तो या दिस इज गोना बी फन. Yes. Yeah. So usually होता ऐसे है guys that Sharvari, because she is an RJ, वो बहुत बोलती है रेडियो पे और इंटरव्यू भी बहुत लेती है गेस्ट सेलिब्रिटीज का. आज शायद उल्टा होने वाला है because I'm going to ask her a lot of questions. So Sharvari, is that a different feeling? Of course, and I'm really excited for this feeling because ये feeling मुझे हमेशा चाहिए थी कि कोई मुझे भी पूछे यार कि मैं कैसे मतलब मेरी जर्नी क्या है या मुझे क्या फील होता है. जनरली मैं ही पूछती रहती हूँ सबको. So today it's special for me, I think. Wonderful, wonderful. Yes, I can see a lot of people joining. Thank you so much coming on a Saturday evening and showing so much love. Thank you so much, guys. So, Sharvari, सगळ्यात पहिले हे journey तू आता काहीतरी बोलली. Why do you feel a journey? Why is it so important? Because as an artist, as a performer, as somebody who's representing a big company, हे journey word का इतका important वाटलं तुला? आय थिंक बिकॉज ही जर्नी नेहमी चालू असते आणि आय डोंट थिंक आपण कधी डेस्टिनेशनवर पोहोचतो. बिकॉज ऍज वी रीच टू द डेस्टिनेशन तिथे एक नवीन जर्नी स्टार्ट झालेली असते. सो इट्स एव्हरी टाइम इट्स अबाउट जर्नी आय थिंक. आणि म्हणूनच ही ऑनगोईंग प्रोसेस चालू आहे अनेक वर्षांपासून. प्रत्येकाची चालू असते, तर ती माझी चालू आहे. सो प्रेझेंट मध्ये सुद्धा आय विल कॉल इट अ जर्नी. Absolutely. So, see, journey is, I think, also very important because you at least know where you're going. And I always believe, Sharvari, म्हणजे मी खूप interviews in the past, I've given a lot of interviews as a candidate. Interview employer ला मी हे नेहमी सांगितलं that the journey is very important. The speed is not, but if you're on the right track, Correct. so you can always definitely reach
योर डेस्टिनेशन. सो होता ऐसे है दैट बहुत सारे लोग स्पीड के चक्कर में शॉर्टकट्स यूज करते हैं हम्म. एंड करेक्ट. दे डू नॉट गेट सक्सेस. सक्सेस मिलता जरूर है, लेकिन उस सक्सेस का एक प्रॉब्लम लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, टेम्पररी होता है. टेम्पररी होता है. अँड ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट जे तू आता सांगितलं दॅट हे जी जर्नी आहे त्याच्या डेस्टिनेशन खूप सारे असतात आणि हे जे डेस्टिनेशन करेक्ट. आहे दॅट कीप्स ऑन चेंजिंग. म्हणजे आपले चॉईसेस पण बदलतात आणि कधी कधी असं वाटतं करेक्ट. डेस्टिनेशन ते ड्रीम अचीव केल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं दैट बॉस ये नहीं, इससे अच्छा भी और हो सकता है, ये तो नहीं चाहिए था. फीलिंग कुछ और होता है अचीव. सो आई थिंक प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाते हैं. यस, प्रेफरेंसेस भी चेंज हो जाता है. यस, बिकॉज आई थिंक विद टाइम ऑल्सो इट इज हमारा मेच्योरिटी भी तो होता है ना कुछ. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो Correct. वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड एक्सपीरियंसेस, बिलीव मी Sharvari, I think you accept and agree. Your first radio show versus your radio show that you Yeah. just conducted yesterday, do you see a lot of change in yourself? म्हणजे स्वतः तू काय चेंज बघितलं का स्वतः? ऑफ कोर्स. एंड आई विल से कि वो जो चेंज है वो दो एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव चेंज भी है. Yes. क्योंकि व्हेन आई वाज डूइंग माय शो फॉर द फर्स्ट टाइम, I was very naive and I was very, excited and I was very passionate about my job. Still I am passionate about my job. But क्या होता है कि टाइम के साथ वो पैशन थोड़ी कम हो जाती है. Yes. और मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि पैशन तो कम हो जाती है, एक्सपीरियंस सबने किया है, लेकिन उसमें थोड़ी प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाता है. तो इन दैट सेंस तब मैं ज्यादा खुद को भाती थी. लेकिन प्रोफेशनलिज्म की बात हो अगर, या टैलेंट की बात हो, या फिर प्रेजेंट करने की बात हो, तो आई थिंक अभी ज्यादा बेटर है. Good. So, Sharmi, तुला नेहमी आरजे व्हायचं होतं? Was it your plan that you want to become an RJ always? That was one of my plans, I think, Okay. because I wanted to be news anchor also. Okay. मुझे साउंड इंजीनियर भी बनना था. और वेरी सीरियस मैं बात कर रही हूँ, सीरियस करियर सोचा था मैंने ये. Okay. और आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर. वो Okay. अभी भी मेरा ख्वाब है. देखते क्या होता है. लेकिन Okay. रेडियो जॉकी मैं बचपन से, जब हमारे पास वो फोन आया था, छोटा जो फोन हमारे पास होता है रिकॉर्डिंग की, जिसमें फैसिलिटी होती है, तो व्हेन वी हैड दैट फोन, सबसे पहले आई यूज्ड टू रिकॉर्ड माय वॉइस एंड प्रिटेंड दैट आई एम अ रेडियो जॉकी. नॉट अ रेडियो जॉकी बट आकाशवाणी निवेदक जो होते हैं, Yes. अनाउंसर्स जो होते हैं, Announcement. वो एकदम ट्रेडिशनल वे में की 7 वाजताची प्रसारण सभा सुरू झाली है, दैट काइंड ऑफ. Okay. तो मैं वैसे करती थी और बहुत अच्छा लगता था मुझे. और मेरे पेरेंट्स और सब रिलेटिव्स भी थे, उनको लगता था ये बड़ी होके तो रेडियो में जाएगी. Okay. और फॉर्चुनेटली वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई. Oh, wonderful, wonderful. So I think a lot of people don't realize हमारे जो सक्सेस होते हैं या अचीवमेंट्स होते हैं, उसके पीछे बहुत सारा पैशन, फोकस, कॉन्फिडेंस लगता है. डू यू एग्री? ऑफ कोर्स. और उसमें पागलपन उससे कुछ कितना नहीं लगता होता है? वो अगर नहीं हुआ तो. उसमें Sorry? पागलपन कितना लगता है? पागलपन तो बहुत लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि पागलपन से ज्यादा सेन एटीट्यूड ज्यादा इम्पोर्टेंट है. Yes. क्योंकि पागलपन आपको बहुत कभी कभी प्रॉब्लम्स में ला सकता है, लेकिन व्हेन यू डू समथिंग वेरी प्रोफेशनली, स्पेशली इन कॉर्पोरेट और स्पेशली इन एनी काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आई थिंक यू शुड बी वेरी सेन एंड फोकस्ड एंड पैशनेट एंड एवरीथिंग, with some kind of madness also, because madness अगर नहीं है तो you cannot do something extraordinary or something unique or creative. So for that you need that pinch of madness, I think, which should be a pinch, which should not be a handful of madness. नहीं तो कुछ और हो जाता है. And I'm sure in this journey, Sharvari, I'm sure even when I started my career, a lot of people will not trust you with your plans. A lot of people will doubt you. A lot of people will say, ये आरजे क्या होता है, तो अच्छा जॉब क्यों नहीं करती है. या फिर ऐसे बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं that why don't you do a stable career? Of course, did you face anything like this? Actually, when I became a RJ, sorry, आवाज आ रही है? Yes, all good. Okay. So when I became a RJ, I don't think कि वो मेरा करियर था, क्योंकि I was studying. I was doing my
BA and MA after that in psychology. So I wonderful. was learning psychology and it was fixed कि मैं तो psychologist ही बनने वाली हूँ. तो ये तो मेरा साइड बाय साइड करियर चल रहा था. और आई वॉज ऑलवेज बीन अ फॉर्चुनेट वन बिकॉज अभी भी मेरा वर्क फ्रॉम होम है. एंड अभी आई कैन से दिस इन दिस कोरोना पीरियड. इनिशियली आई वॉज रिलक्टेंट शेयरिंग दिस बिकॉज पहले लोगों को पता नहीं था कि मैं घर से काम करती हूँ, लेकिन अभी आई कैन शेयर इट विथ प्राउड. यस, आई वर्क फ्रॉम होम. So I could manage my psychology studies also, and मैं अभी जो मैं करियर करती हूँ साइकोलॉजी में वो भी मैं मैनेज कर सकती हूँ with this radio job. So I was always मतलब अकेली रेडियो जॉकी में कभी नहीं थी. उसके साथ मैं कुछ ना कुछ थी. तो लोगों ने वैसे एक्चुअली, और रेडियो जॉकी के बारे में क्या होता है कि पीपल आर वेरी क्यूरियस एंड दे वांट टू नो अबाउट यू कि क्या होता है, कैसे होता है रेडियो. तो लोगों ने यही एक्साइटमेंट हमेशा दिखाई है. और अच्छी बात ये भी है कि दे पे यू वेल. मतलब रेडियो में दे पे यू वेल. तो रिलेटिव्स और घर वाले तो खुशी होते हैं इस जॉब से. अनसर्टिनिटी थोड़ी सी कम, मतलब उसमें थोड़ी सी होती है ज्यादा, लेकिन वो तो हर एक जॉब में होती है. तो yes, this was my experience. I'm sure you have had your experience, the ups and downs as well. Of course. So being a corporate job, वो तो होता ही है. अब बता. But sorry, आपकी आवाज गई. I'm saying that a lot of people will always see your upside, you know, your success and your achievements. But I want to ask you that especially during when things don't go well as per plan, हमारे प्लान के अराउंड वो सब जब चलता नहीं है, हमारे ड्रीम्स और हमारे गोल्स, सो जो फेलियर होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, उससे हम क्या सीख सकते हैं? आई थिंक फेलियर से ज्यादा, या हमारे प्लान अकॉर्डिंग चीजें जब जाती नहीं है, उससे ज्यादा अच्छी बात दुनिया में कोई हो नहीं सकती. बिकॉज आई फाइंड इट वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपकी प्लान गलत जाए. क्योंकि तभी आपको कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन मिल सकता है, और तभी आपको खुद की जो स्ट्रॉन्ग साइड है उसे आजमाने का मौका मिलता है. अदरवाइज सब अगर प्लेन जाए तो क्या मतलब, उसमें कोई बात ही नहीं है. आप तो मतलब जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, शादी करोगे, बच्चे होंगे, एवरीथिंग विल बी गुड, और वो उसमें कुछ बात नहीं है. सो आई थिंक प्रॉब्लम्स जॉब में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली के साथ, खुद के साथ, हेल्थ के साथ आने ही चाहिए. और वो प्रॉब्लम्स ही हमारी जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करते हैं. तो आई थिंक दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सक्सेस गिवर्स और सक्सेस मास्टर्स, आई वुड से, फॉर अस. ऑल्सो आई थिंक इट इज द बेस्ट रिपोर्ट कार्ड फॉर अस दैट अब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, या तो स्किल ठीक करना पड़ेगा, या तो टैलेंट और डेवलप करना पड़ेगा, या तो ये जो सेक्शन है हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वी हैव टू इंप्रूव अ थॉट. अ लॉट ऑफ करेक्शन डेफिनेटली इज रिक्वायर्ड. डेफिनेटली. और आपको भी ये एक्सपीरियंस शायद आया होगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो डूइंग अ वेरी अनकन्वेंशनल करियर. और ये भी जो करियर है, आई थिंक इसमें भी आपको ये एक्सपीरियंस आया होगा. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? I think for me it was very different because usually होता है ऐसे कि हमारे जितने friend circle है, I'm sure you may not have a lot of friends or RJ. Yeah. In my case, जो मेरी मतलब इसमें है वो ही. Yes. बाकी नहीं. Office Random friends नहीं है मेरे आज. Yeah. In my entire school circle, I should say. मेरे स्कूल में 50 लोग हैं, कॉलेज में और 50-100 के साथ दोस्ती हो गई. So maybe around 200 to 300 friends, not one person is a corporate trainer. And now today, anyone who's a friend, who's a corporate trainer, has become a professional friend, and then obviously a good friend. Maybe हम लोग कभी ऑफिस में मिले, या फिर कोई ट्रेनिंग सेशन में मिले, कोई नेटवर्क मीटिंग में मिले, कोई बिजनेस फोरम में मिले, तब जाके हमने कुछ विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज किया होगा, और फिर दोस्ती हुई है. Now, the reason why I'm bringing this point of unconventional careers, as we just mentioned, is that there is no secret formula. There is no step process. Boss, ye karo 1, 2, 3. There is no secret formula. There is no step process. There is only one thing that I feel that works very well is try and fail. Right. Boss, keep trying. You know, there will be a lot of failures. A lot of people will say, "Ye kya ho raha hai?" Because for people to even understand that you're doing well,
they should be in the same profession. For example, if I am an engineer and I'm working for a big IT company, today मैं डेवलपर हूँ, टेस्टर हूँ, फिर और आगे जाके 2 साल के बाद मैं सीनियर डेवलपर बन जाता हूँ, तो लोगों को वो समझ में भी आता है. Of course, But yeah. a lot of people are doing unconventional careers in the field of arts and music and painting, photography, RJ, training, counseling, coaching. There is no step path. So people are not able to judge what you're doing. आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, वो शायद लोग जज ना कर पाए. इसलिए शायद कभी-कभी भी कर सकते हैं हमारे. So that is one challenge that I always had. But fortunately, I'm happy that today, because of Instagram, a lot of friends and family can see me. I'm sure people can see you also today. A lot of friends and family. Yeah. Yes, people have heard you on the radio, but I'm happy that people are now able to hear your story as well. So I think this is something very I'm important happy for all of us. Yeah, thank you. I mean, this is something very important for all of us. So this is my whole idea and take about what were the different times. There were difficult times, there were good times as well, challenging times as well. So hota hai, and a lot of success and a lot of failure, but wow, it's beautiful package. Perfect. Wow, nice. So I think we should redefine the definition of failure, because failure or success ऐसे कोई concrete चीजें नहीं होती. I think unless and until you're mentally healthy, you're mentally stable, and you're doing what gives you peace, I think you're successful. फिर आप कुछ भी करो यार, अगर आपको बैठे हुए भी अच्छा लग रहा है घर पे, and it is giving you immense peace and you're happy with that, so do that. Absolutely. Guilt free रहो. और अगर आपको कुछ कंपनी खड़ी करके सक्सेस मिलने वाला है, या कुछ वो करके सक्सेस मिलने वाला, पीस मिलने वाली है, तो वो करो. So there is not a concrete formula of success or failure, I think. Also, do you feel that success जे definition आहे ते सगळ्यांसाठी different आहे, right? Of course. Yes. But I think we can summarize success in some kind of common experiences. हम कर सकते हैं. एक तो I think when we are successful, जब हम खुद को कह पाते हैं, तो I think we should be first peaceful. We should be peaceful. जो भी आप काम करो, आपको अगर उसमें confusion है और फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा, रोज आप बॉस से शिकायत करके आ रहे हो, खुद से शिकायत करके आ रहे हो, and you're always saying कि मुझे स्ट्रीम चेंज करनी है and मेरा दिन बहुत बुरा गया, ये जो phrases अगर आप रोज यूज कर रहे हो, तो प्लीज rethink what you're doing. So you're not successful. आपको अगर 10 लाख का पैकेज है या 20 लाख का पैकेज है, that won't make you successful, I think. So first and foremost thing for me is peace. Then second thing, is it growing you as a person? जो भी आप कर रहे हो, as a person आप grow हो रहे हो क्या? मतलब आप जिस चीज पे 10 साल पहले वैसे रिएक्ट करते थे, वैसे ही आप अभी भी अगर रिएक्ट कर रहे हो, वैसे ही एंगर इश्यूज आपको है, वैसे ही एंजाइटी आपको अगर आ रही है, then कहाँ हो आप? Are you successful? So I think ये दो चीजें है कि is it growing you as a person and are you peaceful and is it helping your nation? ये भी मुझे लगता है बहुत important है. Absolutely. कि आपकी community, आपका nation and जो world है पूरा, उसे आप better place बना रहे हो क्या? ये भी एक बहुत important चीज है. तो ये तीन चीजें देखनी चाहिए for success, I think. Wonderful points, Sharvari, because I feel that you just mentioned that is it helping you to grow, not your package only, not your designation only. Of course. Of course. It's बहुत important है, designation है, package है, all these things matter a lot. But if you're not growing as a person, and you rightly mentioned that, if you still have those anger issues and anxiety issues, and believe me, for everyone who's in corporate and all our friends also, जो हमें अभी देख रहे हैं, जैसे जैसे आपका stress develop भी होगा, और वैसे वैसे आपके एंगर इश्यूज भी बढ़ते जाएंगे और एंजाइटी भी बढ़ते जाएगी, स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, तो शायद वो सक्सेस का फायदा नहीं है. And you will want to think that something is wrong. And what is wrong? It's not helping you to grow as a person. And if it's not helping you to grow as a person, believe me, you are the only person to enjoy your success. People around you will hate it. Yeah. So you need to be... And for some time, you won't also enjoy it. Absolutely. And that is why we learn so much from Mr. Ratan Tata. I mean, such amazing success stories, but... कितने अच्छे हैं when I don't think anyone in this world
will say that he's not a nice person. He's the most Exactly. perfect example of how to handle success. So, Exactly. and I don't think there is something called as ego or anything in him. So I think he is my idol. I love to see how he works. Manje, it is kitty beautiful what that he's still doing so much for the society. Hmm. And nobody's Right. asking him to do it, but he's doing it on his own. So I think this is one idea about success, and I'm happy that you spoke about redefining success. A lot of people are sharing in their comments that we need to redefine success. So I think it's wonderful. But you were just talking, Sharvari, that if you keep on complaining, तो ऐसा होता ना that लोग खूब complain करता that मेरा office ही ऐसा है. Why do you feel such statements will affect you? एक तो ऐसे problem create कर सकते. Sorry, what are such statements? Yeah, so these usual complaints that आज का तो मेरा दिन खराब जाएगा, पता नहीं मेरे लाइफ में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, ऑफिस में जाओ मूड ऑफ हो जाता है. सो ये जो स्टेटमेंट्स है जो एकदम नेगेटिव है, व्हाट इम्पैक्ट कहाँ पे हो जाता है, कैसे होता है? Yeah, so we'll quickly understand our mind first. Okay. So Yeah. हमारा जो माइंड होता है उसकी बहुत सारी थेरीज है. साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बहुत सारी दी हुई है थेरीज, लेकिन हम एक आइडियल एग्जांपल फॉलो करते हैं सिगमंड फ्रॉइड का. Yes. अभी लाइक समझने के लिए. तो एज वी नो कि जो सिगमंड फ्रॉइड जी है महान, अपने नेटफ्लिक्स पे अभी सीरीज भी देखी होगी उनकी, तो उन्होंने माइंड के 3 स्टेप्स बताए. एक तो है कॉन्शियस माइंड जो अभी हमें सुन रहा है, देख रहा है, एंड जो अभी कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन हमारे आजू बाजू है वो है कॉन्शियस माइंड, वो ग्रैब करता है. उसके बाद आता है प्री कॉन्शियस माइंड. सो व्हाट इज प्री कॉन्शियस? तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अगर हमारा मैथमेटिक्स का एग्जाम है तो हम उससे पहले दिन मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं, या पहले दिन जाने तो कुछ लोग अलग भी पढ़ाई कर सकते हैं उनका अगर मैथ्स अच्छा हो तो वी कैन से दिस कि जब हमें एग्जाम हॉल में एंटर करना होता है तो हमारे मन में जो विचार होते हैं वो मैथमेटिक्स के अराउंड होते हैं. ठीक है. सो जो हमें आज एग्जाम में लिखना है दैट इज प्री कॉन्शियस. मतलब हमारा जो हैंड बैग होता है उसमें जो चीजें हमें आज चाहिए वही होती है. हम पूरा हमारा कपबोर्ड उठा के बाहर ले नहीं जाते. तो दैट इज प्री कॉन्शियस, जिसमें हमारा फोन नंबर, हमारे मदर का नेम या हमारे स्कूल का नेम, ये सब होता है. एंड देन कम्स अनकॉन्शियस, जिसमें आई थिंक मतलब क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट. हर एक के मन में अलग अलग होता है. तो उसमें आपके डिजायर्स होते हैं, आपकी इच्छाएं होती है, आपके अनफुलफिल्ड जो ड्रीम्स आपके होते हैं वो होते हैं, आपके फैंटेसीज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसमें. तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड मैंने बताया बहुत क्विकली, क्योंकि हमारे पास उसके लिए इतना टाइम नहीं है. Yes, yes. तो हमारा जो माइंड होता है वो अनकॉन्शियस माइंड में ये सब चीजें धीरे धीरे चली जाती है. जब हम ये रोज कहते हैं, ये तो आपने सुना होगा, क्योंकि हम यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, तो ये तो आपको सबको पता है. लेकिन वो अनकॉन्शियस में अगर चला गया तो आपके लाइफ में जो भी होगा या जो भी डिसीजंस आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ले रहे हो, कुछ भी डिसीजन, वो सब नेगेटिव होंगे, क्योंकि वो आपने बार बार बोल के आपके अनकॉन्शियस को ये बता दिया है कि मुझे तो मेरा जॉब पसंद ही नहीं है, मुझे तो मेरा बॉस बिल्कुल भाता नहीं है, मेरे कलीग्स तो सबसे बुरे हैं दुनिया में, या फिर मेरे जैसी जो स्ट्रेस है वो दुनिया में किसी को नहीं है. ये सब चीजें अनकॉन्शियस माइंड सच करने लगता है. या एग्जैक्टली. तो ये सब चीजें सच होने लगती है, मैनिफेस्ट होने लगती है आपके मन के सामने, क्योंकि वही आप बोल रहे हो. तो इससे अगर आप, जैसे आपने बोला था, हम जब डिस्कस कर रहे थे कि अफर्मेशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू अफर्म योरसेल्फ अबाउट एनी प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है. और प्रॉब्लम भी क्या होता है? प्रॉब्लम इज जस्ट अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट अ सिचुएशन. सो इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव. तो वो है आई थिंक, तो वो अफेक्ट करता है बहुत. Absolutely. And I think we really want to work in a way that these different aspects of our mind. So the way our subconscious mind is working, it does not need suggestions. It is very clear. Our subconscious mind is very clear that it has to work. For example, even when some of my study says that the subconscious mind, once it is fed with some suggestion and idea through maybe affirmation,
इट विल नॉट आस्क यू क्वेश्चंस, उसमें रीजनिंग नहीं होता है, वो चलता ही है। Right. फॉर एग्जाम्पल इफ माई ब्रीदिंग सिस्टम नीड्स टू वर्क एफिशिएंटली, वो मेरा ब्रीदिंग वैसे चल ही रहा है। If my organs have to work in a specific way, even my blinking of eyes, मेरे आंखों को blink होना है time to time, I don't have to tell myself that Dinesh, blink your eyes now. That is your our subconscious mind, and this entire process of understanding, the detail of subconscious mind is, if you have a doubt, the subconscious mind does not understand at all. Now, I'm taking the example of हमारे स्कूल में जो फर्स्ट रैंकर होता था हमेशा, वो हम होता था every year. Yes, right? In the 5th standard, 10th standard, 12th standard, we always had one first ranker. Because I know one thing very clear, that even the teachers and the principals, his own, he or she, the student जो first ranker आता है, उसके खुद के parents, उसके जितने भी आसपास के दोस्त हैं, उसको हमेशा यही बोलते थे, बस फर्स्ट रैंक तो तेरा ही है। हम कितना Correct. फर्स्ट रैंकर तो तेरा ही है। शाहरुख खान does not doubt anyone else because he knows that he is doing very well. आसपास कितने भी अच्छे एक्टर्स क्यों ना आ जाए, शाहरुख knows that he is the king of Bollywood. There is no doubt at all. बाजीगर. Yes. And that is why Yeah. आसपास के किसी और के सक्सेस की वजह से उसको फेलियर नहीं आएगा, because he has treated his subconscious mind so well and so efficiently that he knows that this is how it is. There is no option B. Right. And that is why I was talking the other day to someone, Sharvari, that your positive thinking, affirmation, manifestation, law of attraction, ये सब कब काम करेगा? जब आप उसको चैलेंज नहीं करोगे तब काम करेगा बस। करेक्ट। होता है ऐसे कि हम उस डाउट अगर होगा तो नहीं करेगा वो। You want to punch it. देख, मैंने 5 मिनट तक सुबह से अच्छा सोचा, एक भी कंप्लेन नहीं किया, आज का तो मेरा दिन अच्छा जाना चाहिए। The moment something wrong happens, वो थियरी को बिलीव करना छोड़ देते हैं। Correct. Law of attraction also, it can be anything. So there will be these ups and downs. There will be bad days and bad times also. But maybe, subconscious mind, evolve the power of your subconscious mind by, Joseph Murphy. उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था शर्वरी एक बार, that there is one lady, उसका एक छोटा बच्चा होता है जिसके आसपास कुछ तो हेवी ऑब्जेक्ट गिर जाता है। एंड यूजुअल नोट में अगर चाहे तो एक इंसान उस हेवी ऑब्जेक्ट को उठा नहीं सकता है, बट बिकॉज वो हेवी ऑब्जेक्ट के नीचे बेबी होता है, शी क्रिएट्स दैट एनर्जी। वो जो मम्मी है वो इतना एनर्जी क्रिएट करती है अपने माइंड से कि वो ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर देती है। डेफिनेटली, या एक्चुअली इन योर लॉजिकल माइंड, क्वेश्चन आंसर डाउट वाला जो माइंड है, उसमें शायद वो नहीं कर सकती थी कि ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं। लेकिन जब पता है कि अब तो मुझे वो हेवी ऑब्जेक्ट उठाना ही है, then you don't have an option, right? You have to lift, because अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं उठाया तो शायद आपका वो जो बच्चा है उसके नीचे, उससे इंजरी हो सकता है। So this is how the mind works. Remember that we had to really be so focused that जो वो इन एंड आउट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही काम होता है। इसलिए वो जो लोग बोलते हैं ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप जितने अंदर नेगेटिविटी डालोगे, और हमारे आसपास तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे हमेशा। Definitely. So I think if you correct. But I think Sharvari, a very important question I want to ask you, because you are a counselor and a psychologist also. We know these theories, सबको ये theory पता है, and सबको अच्छा सोचना भी है. So what are the different ways that we can come out of this guilt? ये गिल्ट से हम कैसे बाहर आए, या फिर ये हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है उसको हम पॉजिटिव कैसे करें, क्या किया जाए? व्हाट कैन वी डू? ओके, सो देयर आर मेनी थिंग्स एक्चुअली, और हमारे यहाँ पे तो मतलब थेरेपीज होती है, साइकोथेरेपी जब हम करते हैं तो हर एक के हिसाब से हमें अलग अलग थेरेपी डिसाइड करनी पड़ती है। तो कुछ लोगों के लिए असर्टिवनेस कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आरईबीटी यूज होती है, कुछ लोगों के लिए हम फ्रॉइडियन थेरेपी यूज करते हैं, तो कुछ लोगों के लिए अलग अलग थेरेपीज। सो इट डिपेंड्स ऑन आपकी कंडीशन क्या है और आपका प्रॉब्लम क्या है। लेकिन एक सबके लिए अगर मुझे देना है कुछ, बताना है कुछ, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्सेप्टेंस। हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स बहुत है, जैसे कि अगर हमें एंगर इश्यूज है या फिर जेलसी है
किसी से, या फिर जेलेसी भी बहुत कभी कभी हमें हमारी जो लाइफ है पूरी रूइन कर देती है। तो सबसे पहले हम तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम जेलस है या फिर हम एंग्री है। तो हम हमारे आनंदम में हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि जो एक्चुअल चिड़ा हुआ इंसान है, एंग्री इंसान है, वो इंसान अगर हम उसे बोले कि काम डाउन, यू आर एंग्री राइट नाउ, डोंट से एनीथिंग, सो ही विल से मैं एंग्री का हूँ, आई एम नॉट एंग्री, सो ही विल से दैट इन एंगर। सो बेसिकली यू डोंट नो कि क्या है, क्या हुआ है आपके साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग कि आपको क्या हुआ है। जब आपको एक्सेप्टेंस होगा तभी आप उसे क्योर कर सकोगे, अदरवाइज यू वोंट। तो सबसे पहले तो आप ये हमारा मतलब आपने भी किया होगा और आप भी बताते होंगे लोगों को कि स्वॉट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यू कांट स्किप दिस स्टेप बिकॉज हमें लगता है ये क्या लिखना है और क्या खुद के बारे में, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। हम लोग भी करते हैं दिनेश, आई एम श्योर कि आप भी करते होंगे। Absolutely. क्योंकि हमें खुद को एक दिशा में ले जाने के लिए, खुद को ये करने के लिए आई थिंक ये बहुत जरूरी होता है। तो साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, लाइफ कोच, सक्सेस कोच भी करते हैं, तो आप भी करिए। ये हम रेकमेंड करते हैं कि इसमें आपको आपके सबसे पहले स्ट्रेंथ्स लिखने होते हैं। तो स्ट्रेंथ में आप क्या लिखोगे? यू कैन राइट एनीथिंग, कि आप अच्छे कुक हो, आप अच्छी बेटी हो, आप अच्छे बेटे हो, आप अच्छे हस्बैंड हो, यू कैन राइट एनीथिंग। जो आपका एकदम छोटा स्किल होता है, एकदम छोटा स्किल जिसको कोई वैल्यू नहीं है मतलब सोसाइटी के हिसाब से, वो भी आप लिख सकते हो। और बड़े बड़े स्किल आपको लिखने हैं तो वो लिखिए, स्ट्रेंथ्स खुद की लिखिए, उसके साथ आप लिखिए वीकनेसेस। वीकनेसेस में आपको मतलब स्ट्रेंथ्स जो होते हैं वो भी वीकनेस हो सकते हैं, तो इट कैन गो हैंड इन हैंड। तो आपके जो वीकनेस है वो लिखिए, अपॉर्चुनिटीज स्ट्रेंथ से आती है तो वो लिखिए, एंड देन थ्रेट्स लिखिए। ये जब आप लिखोगे तो आपको एक क्लियर आइडिया आएगा आपके माइंडसेट का, और आप क्या कर रहे हो दुनिया में, आपके जो प्रॉब्लम्स है, मेंटल इश्यूज जो है वो क्यों है, ये आपको समझ में आएंगे। तो बहुत बार आई थिंक हम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होते, तो खुद के साथ ऑनेस्ट ना होने की वजह से हमें पता नहीं होता कि ये जो हमारा इशू है वो क्यों हो रहा है। तो जब हमें रीजन समझ में आता है तो 50% काम तो वही खत्म हो जाता है। 50% सिर्फ हमें चेंज करना है। तो वो करने के लिए आई थिंक वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम साइकोथेरेपी। And I think beautiful point. SWOT is so easy. Believe me, Sharwari, हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं, and when we are training, these managers and when we want to do training for them, the first 15 minutes, बहुत एक्सेप्टेंस लेवल जो हम बात कर रहे थे अभी कि खुद को एक्सेप्ट करो या इस न्यू कॉन्सेप्ट या लर्निंग को एक्सेप्ट करो, वो होता नहीं है। Because somebody who is successful at the age of 40, 42, 45, they feel I know everything. अब ये जो I know everything is a big problem. Because then you feel that who is this guy or what is SWOT analysis? And in SWOT analysis, S for strength मुझे इतना ही करना है. I have no weakness, I have no threat. So ये जब तक तो का नहीं आता है तब तक शायद चेंज नहीं आएगा. And change is very tough. और वो चेंज के लिए you need to understand your own thought process, your emotions. And I'm sure at the end of the day, ये एक्सेप्ट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये माइंडसेट नहीं होगा. Yeah, exactly. As Vishal Lahoti sir has rightly pointed, that understanding emotion is very important. He's also a psychologist and psychotherapist. We work together. So I think we can take people's comments also. Sure. There are lots of comments. Yeah. So Sona says that thank you everyone. SWOT analysis does work every time. I'm sure even for a student, if you're a solopreneur, मतलब अगर आपका खुद का बिजनेस है और आप अकेले काम कर रहे हो, या फिर आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हो, या फिर आपका खुद का एक बड़ा बिजनेस है, SWOT आपको कभी भी हेल्प होगा. मुझे लगता है कि ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है आज, you need to do a 2 SWOT process. 1 SWOT is for you. आप कैसे काम करते हो, and 1 SWOT is for your business. Your strengths of your business and the threats in your business. And then see, is there a link in between? And probably तब शायद जाके ये process में improvement आ सकता है. And again, I'm very happy that you've got SWOT and all the other techniques. And I feel, one of the best things is to talk to your customers and understand from them कि ये problem कहाँ पे है, क्या अच्छा नहीं हुआ है, जिसको हम शायद बोल सकते हैं feedback.
So one of the most important aspects is a feedback. So हम ट्रेनिंग के बाद शर्वरी बहुत कॉमन सिनारियो है that एक फीडबैक फॉर्म, और वो फीडबैक फॉर्म मैं इंसिस्ट करता हूँ कि एनोनिमस लिखो। अब बहुत सारे कंपनी के जो एचआर और मैनेजर्स होते हैं उनको वो डेटाबेस में चाहिए, इसलिए बोलते कि नहीं फीडबैक में अपना नाम लिखो, और मैं नाम मत लिखो, कीप इट एनोनिमस, क्योंकि जब एनोनिमस होगा तब आप शायद खुद सच लिख पाओगे। एंड दैट इज द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग हमारे खुद के जो वीकनेस होते हैं। आई गो आउट एंड आई टॉक टू लॉट ऑफ सीनियर ट्रेनर्स। अब बहुत कम होता है इंडस्ट्री में से, मैं मेरे सीनियर ट्रेनर्स के पास जाता हूँ और उनको बहुत सारे ट्रेनिंग के फोटोज या वीडियोज या जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया होगा वो उनको दिखाता हूँ और उनसे फीडबैक लेता हूँ कि ये कैसे दिख रहा है। बट इफ आई डोंट डू दैट एंड मैं बोलूँ कि नहीं ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनर मैं ही हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, दैट इज द डे आई विल गो डाउन। Absolutely. Absolutely. It's important that at every step you monitor, but very important also, Sharbari, here is you go to the right people. Definitely. And I think SWOT analysis can help you grow as a person. मतलब अभी आप business के बारे में बोल रहे हो, तो being a psychologist हम बहुत individualistic हो जाते हैं कभी कभी. Of course we think about business also, लेकिन बहुत जो हमारा एक human being nature या हमारा जो mind होता है हम उसी के around ज्यादा revolve करते हैं। तो SWOT जो है ना वो आप साइकोलॉजी में मतलब खुद को आपके इमोशंस के बारे में, बिहेवियर के बारे में भी कर सकते हो। तो आई थिंक जब आप खुद को समझोगे और खुद की पर्सनालिटी को एक आजकल का जमाना ब्रांड का है, मतलब आप खुद ब्रांड हो। ऐसा नहीं है कि यू विल मेक समथिंग एंड दैट विल बी अ ब्रांड, वो अलग सिनारियो है। लेकिन बहुत बार जब हम जैसे करियर्स में आई थिंक हमारा नाम ही ब्रांड है। तो स्वप्नाली ने भी कमेंट किया, तो स्वप्नाली भी हमारे नगर की एक, मतलब मैं उससे बहुत इंस्पायर होती हूँ, तो शी इज ऑल्सो ब्रांड हरसेल्फ। सो ये सब जब हम करते हैं तो आई थिंक खुद के बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्रूटली और वेरी ऑनेस्टली हमें खुद के सामने पेश आना चाहिए। जो भी हमें लगता है, जो भी हमें इमोशंस, जो बहुत बार सोसाइटी के नॉर्म्स के अनुसार भी नहीं होती, कुछ कुछ चीजें जो हम फील करते, तो वो भी हमें खुद के सामने पेश करनी ही होंगी। और व्हेन यू डू दैट पीपल, लोगों को मुझे बताना चाहती हूँ मैं कि जब आप ये करोगे तो बिलीव मी यू विल फील पीस। और दैट इज अगेन, कैन यू गिव an example how to do it? For example, in your own industry, let's take the example of you being an RJ. So your first two, so three I think मेरे ऑफिशियल अकाउंट से मैं खुद के कंपनी के बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कॉर्पोरेट के बारे में तो जरूर मैं कहूंगी कि कॉर्पोरेट में कैसा होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको आपके अच्छा सोचते हैं आपके लिए। There is a lot of politics, there is a lot of cat fights and ego issues and आपके personality के, आपके कपड़ों के बारे में, आपके दिखने के बारे में, how you look, body shaming and everything, वो तो होता ही है कॉर्पोरेट में। तो जब ऐसी चीजें होती है, it's very natural कि हम किसी के बारे में, हमारे मन में jealousy आ जाए, या हम ऐसे बुरे इंसान नहीं होते, लेकिन इट्स वेरी नॉर्मल कि होता है। हमसे कोई बढ़िया कुछ कर रहा होता है तो हम सोचते हैं कि शी लुक्स बेटर देन मी और शी कैन डू बेटर देन मी, ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हो? मुझे ऑडियंस को पूछना है कि क्या करते हो आप? बहुत बार हम डिनाई करते हैं या फिर उसे बुरा समझने लगते हैं कि शी इज स्टार 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 स्टार। ऐसा बहुत बार होता है। तो ये सब चीजें अगर आप खुद पे ले लो कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है उसके बारे में, तो मुझे हो रहा है ना, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। तो ये जब आप खुद को समझाओगे और एक्सेप्ट करोगे कि मुझे जेलसी फील हो रही है, ठीक है, इट्स ओके टू फील जेलस। ये जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको आई थिंक मिल जाएगा जो वे है उसे डील करने का। तो ये आई थिंक एग्जाम्पल था, जो एक कॉमन एग्जाम्पल, हर एक, सिर्फ लड़कियां जेलस नहीं होती, लड़के भी होते हैं, तो लड़कों को भी ये आई थिंक एग्जाम्पल रिलेट होगा। Yes. And I think one of the most important aspects, a common observation that I've seen, jealousy तब होती है जब शायद you have put equal efforts and probably you are not successful, but शायद किसी और ने उतने efforts नहीं डाले हैं, लेकिन वो already successful है। So I think
Common, आई हैव अ yeah. डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस. Yeah. जेलसी, मतलब आपने जो कहा वो भी है, मतलब वो भी एक केस हो सकती है, लेकिन तब शायद जब हम जेलसी फील करते हैं, जेलसी या फिर हम जब बुरा फील करते हैं, तो दैट इज जस्टिफाइड, Yeah. कि हमने दोनों ने सेम एफर्ट्स लिए हैं, तब भी उसे कुछ मिला है, मुझे नहीं मिला है, तो दैट इज अ वेरी ह्यूमन इमोशन विच इज वेरी नेचुरल. बट इनसिक्योरिटी से जब जेलसी आती है ना, दैट इज वेरी बैड. Yeah. इनसिक्योरिटी किस बात की, कि उसको मेरे से अच्छी इंग्लिश आती है तो वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी, तो आई विल फील जेलस फॉर हर. Yes. तो दिस इज इनसिक्योरिटी. तो आपकी कमियां अगर दूसरों की, मतलब दूसरे में कुछ अच्छा है और आप में कुछ कम है, और देन यू आर फीलिंग जेलस, देन आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम. जो आपने एग्जाम्पल लिया, दैट इज अ हेल्दी काइंड ऑफ जेलसी और हेल्दी काइंड ऑफ फीलिंग. वो तो सबको आती है, विच इज वेरी नॉर्मल, You I can think. actually take that energy from that jealousy to create a new. Yeah, convert and Yes, convert improve करना है. yourself. Yes, yes, yes. And I think, और इस पर्सपेक्टिव भी, या yeah, sorry, हाँ बोलो बोलो. Yes, yes. और इस पर्सपेक्टिव में हमें ये भी याद रखना होगा बहुत बार कि कभी कभी हमें हमारी, मतलब जो सिचुएशन होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती. Mm-hmm. तो आप कुछ भी कर लो, आप पहाड़ यहाँ से यहाँ गिरा लो, अगर आपको वो प्रमोशन नहीं मिलना है तो आपको वो नहीं मिलना है, आप कुछ भी करो. मतलब ये थोड़ा सा सुपरस्टिशियस या अलग पर्सपेक्टिव हो जाएगा शायद, लेकिन यही सच है. I think मतलब वही एग्जांपल है हमारा फर्स्ट रैंकर वाले का ही एग्जांपल है that whatever I do, I am successful in life. या I ये think भी है. it is तो also कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती. नहीं होती है. And this is also something like a placebo effect, I feel, मतलब ये डेफिनेटली, जो होता है ना होता है. that my mind works irrational. Yes. या Yes. So डेफिनेटली. प्लेसिबो इफेक्ट, जैसे मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा दैट जो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं, तो वो डॉक्टर को देखते ही हमें अच्छा लगता है, वो डॉक्टर टच जिसको बोलते हैं, डेफिनेटली, या कि वो लोग अच्छे हेल्दी सप्लीमेंट्स विटामिन्स देते हैं जनरल वेलबींग के लिए, लेकिन वो खाने के बाद हमें अच्छा लगता है. सो दिस इज हाउ प्लेसिबो इफेक्ट इज. आई जस्ट टाइप इट डाउन. डेफिनेटली. People to do research because your mind, we were just talking about subconscious mind and conscious mind. Your placebo effect works the way it is. उसमें कोई डाउट नहीं होता है. बहुत सारे लोग करेक्ट. पिछले वाले सेशन में शर्वरी हमें पूछ रहे थे दैट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, उसमें भी प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है. दैट ये मेरा है. सबने ओम शांति ओम मूवी देखा है. जब वो शाहरुख खान, तो ही इज इमेजिनिंग कि मुझे वो फिल्म फेयर का अवार्ड मिलना चाहिए, पूरी कायनात मुझे हेल्प करेगी. We know that, go to that scene and just watch it. और बहुत सारे सुपरस्टार्स, बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, दे क्लोज देयर आईज और वो विजुअलाइज करते हैं कि उन्हें वो गोल्ड मेडल मिल रहा है, उन्हें वो फर्स्ट रैंक मिल रहा है, दे आर गेटिंग द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड. नाउ दिस इज डेफिनेटली. reprogramming your mind. So I'm sure psychologist, as a psychologist, you can tell us that reprogramming your mind and shifting thoughts, ये कितना जरूरी है. आई थिंक ये बहुत जरूरी है, और आपने ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल और अच्छा टॉपिक पूछा है. मुझे लगता है कि आई थिंक वेस्टर्न साइकोलॉजी तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन ईस्टर्न साइकोलॉजी भी हम फॉलो करते हैं. लेकिन जैसे हम आनंदम में काम करते हैं, तो वी बिलीव कि हम जो कहते हैं कि भगवान है या फिर कोई देवता है या कोई ब्रह्म जो कहते हैं ईस्टर्न साइकोलॉजी में, तो आई एम अ ग्रेट बिलीवर ऑफ इंडियन माइथोलॉजी एंड इंडियन स्पिरिचुअलिटी. तो मुझे यही कहना है कि जो हमारे भगवान होते हैं या कोई भी होता है, वो हम में भी बसते हैं. और हम में बसते हैं इसका मतलब क्या है, जो हमारा मन है, हमारा जो माइंड है, दैट इज गॉड. तो जैसे आपने कहा कि हम एक चीज अगर हमारे खुद से बार बार कहेंगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी. वो शायद प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है या फिर हमारे माइंड की एनर्जी हो सकती है. दैट कैन बी एनीथिंग. तो यही है, यू हैव टू प्रे टू योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट समथिंग टू योर सेल्फ. और इसमें खुद को भगवान नहीं बनाना है. भगवान को भगवान ही रहने देते हैं, लेकिन खुद के माइंड की एनर्जी को जानते हैं सबसे पहले. और आई थिंक यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा था कि व्हाट आर द थिंग्स वी कैन चेंज एंड वी कैन नॉट चेंज. ऐसे जो मैंने जो अभी कहा था कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, तो आई थिंक इसमें सबसे इजी थिंग है, इजी सेंटेंस है कि दूसरों का बिहेवियर आपके हाथ में नहीं हो सकता. तो वो आपकी माँ हो, आपके हस्बैंड, वाइफ, एनीबॉडी,
तो आपको सिर्फ आपके खुद पे फोकस करना है बस। हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि मेरा कलीग मुझसे ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है, मैंने तो उसको इतनी हेल्प की थी, मैंने तो उसे इतने अप्रेजल में ये किया था, वो किया था, लेकिन खुद उसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो जब हमें ये थॉट आ जाता है तो हमारे 2 दिन, आई थिंक 2 महीने भी वेस्ट हो जाते हैं कभी कभी। Absolutely. कुछ लोगों के बारे में तो कुछ साल वेस्ट हो जाते हैं कि मेरी माँ ने मेरे साथ ये किया है और मेरे बचपन में मेरे साथ ये हुआ है। तो आई थिंक ये जो है ना, ये हम दूसरों का बिहेवियर कभी चेंज नहीं कर सकते, और एक्सपेक्टेशन नहीं रखना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो आई थिंक जो जो आपने बताया कि हमें कैसे अल्टर करना चाहिए हमारा माइंड, Yes. तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी सबसे कि डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ये बहुत थोड़ा सा आपको साधु संत टाइप लगेगा शायद, लेकिन दिस इज द ट्रुथ। और सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब आप बिजनेस में एक्सपेक्टेशन रख ही सकते हो, वो तो यू नो दैट इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच, वो तो रखना ही है। लेकिन जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर आप ये कर सकते हो देन यू आर डूइंग ग्रेट। लेकिन दिनेश, टेल मी, is it possible? Is it possible I think practically? we need to find a good I don't balance. think it also. is. Yeah. We need to find a good Yeah, balance. exactly. And Exactly. So expectation को, I'm coming on that point. Yeah. yeah, expectation को हम शायद उसको छोटे-छोटे steps में develop कर सकते हैं. Yeah. So expectation मैं तो बोलूंगी कि रखने ही नहीं है। Expectations रखो ही मत। लेकिन जैसे आपने बोला कि बैलेंस क्या करना है, तो बैलेंस हमें ये करना है कि अनकंडीशनल कैसे हम एम्पथी किसी के बारे में दिखा सकते हैं। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्ल्ड नीड्स दिस। Being empathetic is the most important thing you can do for yourself and for the other people in your life. तो हमें अगर रिलेशनशिप्स अच्छी करनी है, हमारी सुधारनी है, पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, तो यू हैव टू शो एम्पैथी कि उसको अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट बिहेविंग द वे यू वांट टू बिहेव विथ यू, देन अंडरस्टैंड व्हाई डज दैट पर्सन इज नॉट डूइंग सो, आई थिंक। और ये आप तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे व्हेन यू अनकंडीशनली गिव him that energy and understand what he is feeling exactly with the help of empathy. Good. I think ये तो बहुत थोड़ा अलग हो गया, no, लेकिन I we think this can is talk, very important. yeah, definitely. Good. So just quick time check, Sharvari. I think we just have about 10 minutes left. So let's Yeah. take some questions. I can see something from Maulik, and Maulik is asking us, dream and passion. What are the some basic difference to live a successful life? What is more important, dream or passion? So he's asking, dream or passion. You would like to answer that? You can also answer that. I will give a quick answer. I think So dream or passion. for me, I think ये सब जो नाम है, ये हमने ना ये नाम जो दिए है, पैशन, ड्रीम, सक्सेस एंड ये सब एनर्जी के नाम है, मुझे लगता है, अलग अलग नाम। सो बेसिकली यू हैव एनर्जी, सो आप एनर्जी का क्या बनाना चाहते हो ये आपके हाथ में है। तो आई थिंक बोथ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन एट देयर places. And I think passion is the fuel. It is that energy of that vehicle which will help you to reach your dream. मतलब पैशन होना बहुत जरूरी है, और पैशन का जो मीटर है उसमें आप कितनी इंटेंसिटी डालते हो, उससे शायद आपके ड्रीम का अचीवमेंट लेवल भी क्रिएट हो सकता है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पैशन ऐसा चीज होता है जो आपको प्लानिंग की जरूरत नहीं लगता है। यू कैन वर्क सो हार्ड, यू कैन वर्क स्मार्ट, यू कैन बी रेगुलर, यू कैन बी कंसिस्टेंट, बट अगर आपका पैशन लेवल ज्यादा है और इट इज एट अ हाई लेवल, then I think your dreams, your goals, your success, your achievement, I think everything comes to you. So I feel passion is more important than your dream, because your dreams will keep changing. आपको एक ड्रीम अचीव करने के बाद में दूसरा ड्रीम चाहिए. So to keep that consistent and continue रखने के लिए, I think passion is more important, is what I feel. Nice perspective it is. Ankush is saying whatever can happen will happen. Okay, so it's more of जो होना है वो तो होते ही रहेगा, and it works very well. Samir says that change is the most constant thing in the world. Absolutely, Samir. Change is very important. Pragati here says that having expectations is human. However, one can avoid getting attached to the outcome of those expectations. Good. So I think, yeah, this is where you need to find that balance, that till the extent or level
वो एक्सपेक्टेशन आपको इफेक्ट नहीं करता है, चलेगा बस। आई कैन एक्सपेक्ट माई फेवरेट टीम टू विन और मेरे फेवरेट एक्टर को वो अवार्ड मिलना चाहिए, मैं एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। अगर नहीं मिला तो इट्स ओके, कल सुबह मुझे वापस काम पे जाना है, आई विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। So this is where you need to keep it different, is what I feel. वो तो है, मतलब if when it comes to personal life, I think all dimensions change हो जाता है. Absolutely. Sharuli, there's a question for you by Sonal, and he's asking that, just a minute, where is the comment? How would you correlate clinical psychology with today's pandemic situation? Interesting. Oh, nice question. It is relatable in all ways, I think, every way. Because clinical psychology ले लो या psychology ले लो, everything that exists in this world is related to psychology. Name it and it is related to psychology. So I think pandemic situation हो या फिर हमारा अभी जो economical loss हो रहा है सबका, जो एक थोड़ा सा डिप्रेशन का माहौल है, एंड वी आर सिटिंग एट होम एंड गेटिंग स्ट्रेस्ड, एंड कल क्या होगा, मेरी जॉब जाएगी क्या, ये सब चीजें हैं. उसी के साथ वी आर फीलिंग हैप्पी ऑल्सो कि वी आर स्पेंडिंग टाइम विद आवर फैमिली, वी आर कुकिंग, वी आर डूइंग विच वी वर नॉट डूइंग सिंस एजेस. वी वांटेड टू क्लीन दैट डेस्क, बट वी डिडंट डू दैट. लेकिन अब हम कर रहे हैं. तो देयर इज अ मिक्स्ड इमोशन है. वी आर फीलिंग गुड, वी आर फीलिंग कंटेंट, बट एट द सेम टाइम जो पेस हम पहले कैरी कर रहे थे ना, कि रोज भागना है और ट्रेन पकड़नी है और वो जाना है. हमारे अहमदनगर में तो ट्रेन वगैरह नहीं पकड़ते हम, लेकिन वो पेस तो था हमारा कि ये करना ही है आज, दैट मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग. सो वो अब इतना नहीं है. तो हमारे मन में कुछ गिल्ट आ रही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं मैं सक्सेस के जो जा रही थी अच्छे से, वो अभी मतलब कम तो नहीं हुआ मेरा. तो ये सब हम फील कर सकते हैं. तो आई थिंक क्लिनिकल साइकोलॉजी इज रिलेटेड विद एवरीथिंग. अभी पैंडेमिक में अगर मैं कहूंगी तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको यही मुझे बताना है कि प्लीज डोंट फील गिल्टी. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर आप बिंज ईटिंग कर रहे हो या आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप गिल्टी मत फील करिए. ऑफ कोर्स ये जो मैं कह रही हूँ इसका मतलब गलत नहीं निकालना है आपको. गिल्टी कब नहीं फील करना है आपको, अगर आप ये 2-3 दिन नहीं कर रहे हो. अगर आपको बाद में इन चीजों का अगर कुछ आउटकम्स तो आएंगे ही. तो इफ यू आर रेडी टू फेस द आउटकम्स, इफ यू आर रेडी टू गेट ओबेस, इफ यू आर रेडी टू गेट फैट and less productive and everything, then you should do it. You should not exercise, you should not eat healthy. But अगर आपको प्रॉब्लम होने वाली है भविष्य में कि आप फैट हो गए हो, आप लेस प्रोडक्टिव होना, तो करो, तो एक्सरसाइज करो, तो अच्छा खाओ. तो बेसिकली इट इज अपॉन यू. कोई लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको वो देखना चाहिए, वो खाना चाहिए, वो करना चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि क्या यार मुझे नहीं करना था लेकिन ये बोल रहे इसलिए करना पड़ रहा है, तो वो मत करिए. डोंट डू दैट. इट्स सिंपल. बिकॉज अगर आप वो आउटकम हैंडल करने के लिए कैपेबल है देन यू शुड नॉट डू इट. लेकिन अगर आपको चेंज चाहिए तो यू शुड डू इट डेफिनेटली. So this is how I look at the situation. Guilt-free attitude is most important. Thank you. Guilt-free attitude is most important. Secondly, देखो कि आप कल से अच्छा फील कर रहे हो. फील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या इमोशन फील कर रहे हो. टर्बुलेंस है क्या आपके इमोशन में, ये भी आपको देखना है. तो चेक ऑन योर इमोशंस. दैट आई विल सजेस्ट. Yeah. I think just to add 2 points from me on this is there is something called as FOMO, fear of missing out. और ये जब हम घर पे बैठे स्पेशली इन दिनों में बहुत सारे लोग करते रहते हैं कि क्या तूने वो नेटफ्लिक्स पे वो देख लिया क्या, अच्छा ये चैलेंज कर लिया क्या. डू इट. अगर करना है तो करो, बट डोंट गेट इनटू दैट सोशल प्रेशर. आई एम टेलिंग ऑल द अदर दैट वो अपने पार्टिसिपेंट्स और अपने फॉलोअर्स और स्टूडेंट्स में वो प्रेशर मत क्रिएट करो कि नया कुछ सीखो, नया कुछ सीखो. अरे बॉस नहीं सीखना है, आराम करना है, यही तो करने के लिए. सो एज लॉन्ग एज बिंज वॉचिंग, बिंज ईटिंग अगर आपको करना है तो करो. एंड इफ यू कंटिन्यू एंड इफ इट ब्रिंग्स पीस फॉर यू, इफ यू फील गुड अबाउट इट, इफ यू फीलिंग लिटिल थॉटफुल कि चलो अच्छा है, देन डू इट. अ लॉट ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग अगर आप साड़ी चैलेंज कर रहे हो, कुर्ता चैलेंज कर रहे हो, करो, इसमें क्या है. Do what makes you happy.
So, but don't get Correct. FOMO that अच्छा सब कर रहे तो मैंने वो कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है. हाँ. don't get into that because then you are in the social trap. वो तो पहले भी थे, अभी भी आप सोशल ट्रैप Correct. पे हो घर पे बैठ के, तो फिर तो चेंज तो कुछ आएगा नहीं ना बॉस. So I think this is what my two takes is. Sujata is asking here that, okay, she's asking me, Dinesh, what motivates you? I always seem you happy and high on energy. Yeah, even I wanted to ask you that question because you're always smiling bright and वो smile बहुत energy सबको देती है. तो Thank yeah, you. it's my I think question ये also. smile का एक ही है, thank you. ये smile, this is for my mummy. आता ती टीवी बघत आहे, मतलब टीवी वर. I This feel is so sorry, मैंने सुना नहीं है. स्माइल का क्रेडिट मैं पूरे मेरे मम्मी को देता हूँ कि ये जो मेरा स्माइल Oh है wow, वो फोटो कॉपी है, जेरोक्स कॉपी है मेरे मम्मी के स्माइल का. सो आई थिंक wow. आई गेट इट फ्रॉम हर. द वे शी स्माइल्स, मतलब मेरी मम्मी अगर स्माइल करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड आई थिंक आई कंटिन्यू दैट. सो आई स्माइल I एंड think this is in your genes क्योंकि स्वप्नाली का स्माइल भी बहुत स्पेशल है. स्वप्नाली भी वैसी है. यस यस. सो what is more important here to understand is for me and for everyone who wants to be happy is if I am smiling, I'm trying to make things better. And I have Wow. a strong feeling that smile and energy and whatever energy you have, it is very contagious. And it is Wow. contagious for you and for others also. मतलब अगर आप एक अच्छा कुछ एनर्जी डालते हो तो वो बनते जाता है. सो वो पॉजिटिव इफेक्ट करना है या नेगेटिव स्नोबॉल इफेक्ट करना है, वो बढ़ते जाता है. सो आई फील दैट Wow. मेरा सुबह एनर्जी अच्छा है तो दिन भर अच्छा रहेगा तो रहेगा बॉस. So that is why I want to be very high on energy, and if that is what makes me feel good and people around me, so I think it is a responsibility also. So Sujata Wow. happens to be one of my ex-colleagues. She was an HR in the company, and उनके recruitment और उनके counseling के through हमारे participants list बनते थे. So we have seen people develop and grow. And as a trainer, as a coach, even you are a life coach, you are representing so many people. So I think we have that responsibility also. तो हमें Correct. high on energy रहना है, and if it brings success and happiness to other people, that makes me happy. So people development brings me happiness. ऐसा मुझे लगता है कि ये मेरा simple answer है. So thank Wow, that was a great answer. uh, something important is अंकुश says ये वक्त निकल जाएगा, स्वैग से करो नए वक्त का स्वागत. Okay, wonderful. Interesting points, and go with the flow is what a lot of people are saying. Thank you, Nidhi. DJ, your smile helps. Okay, good. So, quick closing, Sharvari. I want to really ask this. This is very important. That I've seen you sing in some of your sessions. So, viewers को बता देते हैं that Sharvari has a long list of introduction. शायद 1 घंटा कम पड़ जाए शर्वरी के इंट्रोडक्शन के लिए. So ऐसा कुछ नहीं. she is a life coach and a wonderful psychologist as well, a wonderful human being. But what is more important also right now at this point is she's a fantastic singer. So Sharvar, if you would like to sing for 2 minutes, something, your favorite song. Definitely, sure. Which song? I think Any, पता नहीं क्या गाऊं. तुझा favorite song है? Yes, तुझा favorite song, yes. What's a favorite song? Yeah, I'll sing Lag Ja Gale. Yeah, sure. हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले. Thank you. क्या बात है, fantastic. I think we are closing on a 15 seconds left. So I would like to say, yes, everyone, thank you so much for joining.
You guys have been Thank you so much. Yeah. all the very best. Stay tuned for more sessions, and I wish you a lot of good luck. So, Sharvari, quick last 5 seconds to you. Yeah. Thank you.